Hello friends, welcome to Prep IAS. I am Arpit and today we are going to talk about India-Canada diplomatic standoff. This is one of the most talked about topic in international relations today. But before getting into the reasons why this diplomatic standoff is happening, let us first understand about the political and economic structure of both these countries. India and Canada, there are multiple differences and similarities. First, let's talk about the differences between these two countries. Canada is an economically developed country. India is a developing country. Canada's population and population density is very less as compared to India's population and population density. In fact, India is now claimed to be the world's most populous country by many estimates. This country was established as a democratic country in 1867, India in 1947. This country is not a republic. I'm talking about Canada, and India is a republic. So republic is where the head of the state is chosen directly or indirectly by the people. And Canada's head of the state is not chosen directly or indirectly by the people. Canada's head of the state is the King or Queen of England. At the moment, King Charles III. So it is kind of a dominion. And India's head of the state, the president, is chosen indirectly by the people. The MLAs and MPs elect the president. Now let's talk about the similarities between both these countries. Both these countries were at one point of time colonies of the British. That is a different story that the Britishers decolonized Canada and made it a dominion in 1867 and they decolonized in India in 1947. Both these countries are having parliamentary form of government. Westminster style means majority party establish the government and the leader of that party becomes the prime minister. Prime Minister is the head of the government in both the countries, India and Canada, having the real powers. Another is that both are liberal democracies, and this diplomatic standoff can somewhat be rooted in the liberal democracies of these countries. Yes, you heard me right. Democracy is, somewhere or the other responsible for this standoff which is happening. Why? You will learn in this video. Now, what happened actually? To understand this, let's go to 2023. 2023 जून में हरदीप सिंह निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन का मर्डर हो जाता है बाय अननोन असेलेंट्स। सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैनेडियन पार्लियामेंट में इनको श्रद्धांजलि देते हैं और यहीं पर इंडिया इसको अपोज करती है। अपोज करने के पीछे कारण एक और भी था कि जस्टिन ट्रूडो का यह मानना था कि हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर इंडियन एजेंट्स ने किया है, वो इन्वॉल्व है। हालांकि कोई प्रूफ नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रिटेलिएशन दिया और बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है जो आप ऐसा कह रहे हैं, आप ड्यू इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वी विल बी सपोर्टिंग यू इन दैट। एंड अगर तब निकल के आता है कि हमारे एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, तब आप ये हमारे ऊपर आरोप लगाइए। ठीक है, कैनेडियन सिटीजन्स ने बेसिकली वहां पे रह के कैनेडियन सिटीजन्स की जो सुरक्षा है वो वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एंड हर एक गवर्नमेंट की होती है, यहां पर इंडियन गवर्नमेंट की है। बट कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे? उसके पीछे जो कारण है वो है दैट ही वॉज लिंक्ड टू द खालिस्तानी मूवमेंट। ही proclaimed himself to be a Khalistani Sikh. And Khalistanis are against India. That is why Justin Trudeau was saying that Indian agents are involved. खैर, हमने इन्वेस्टिगेशन करने को बोला कि आप कीजिए इन्वेस्टिगेशन, एंड वो इन्वेस्टिगेशन
इस साल यानी कि अक्टूबर में कंप्लीट हुई. Let me tell you, friends, in that investigation also, it was not proven that Indian agents killed Hardeep Singh Nijjar in June 2023. Canadian government ने उस इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट में ये बोला कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वहां पे कनाडा में, कैनेडियन एम्बेसी में जो स्थित है, वो हरदीप सिंह निज्जर पे इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं उनका लिंक है. इंटेलिजेंस गैदरिंग करना इज नॉट इक्वल टू मर्डर करना, हमारा यह कहना है. इंटेलिजेंस गैदरिंग तो हम करेंगे ही ना, क्योंकि वो एक खालिस्तानी है. इंटेलिजेंस गैदरिंग हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि 2020 में इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इनको एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था. Unlawful Activities Prevention Act, let me tell you, friends, was passed in the year 1967. It has been amended in 2004 to include terrorist activities in it. But in 2019, it was again amended. और 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से हम इंडिविजुअल्स को भी एज टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, वो था. और उसके अगले ही साल 2020 में हमने इन इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे कैनेडियन सॉइल पे रह के. क्या एंटी इंडिया एक्टिविटी थी जी? खालिस्तान मूवमेंट. तो खालिस्तान मूवमेंट एक्चुअली क्या है? खालिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ खालसा. टू बी वेरी यू नो बेसिक, खालसा सिख्स वो सिख्स हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिखिज्म को अडॉप्ट करते हैं. वो 5 Ks फॉलो करते हैं, दैट इज कच्छा, कड़ा, कृपान, कंगा एंड केश. वो मीट कंज्यूम नहीं करते, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स रिलीजन रहते हैं. वो अपनी दाढ़ी नहीं कट कर सकते, अपने बाल नहीं कट कर सकते, हमेशा अपने पास कड़ा पहन के रखेंगे, कंगा रखेंगे, कृपान रखेंगे. वो होते हैं खालसा सिख्स. और 1970s और 80s में पंजाब में ये खालिस्तान मूवमेंट काफी इंटेंसिफाई होके चला. इस मूवमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें लैंड ऑफ खालसा एस्टैब्लिश करना है, दैट इज खालिस्तान, एज अ सेपरेट कंट्री. वी वांट टू टेक आउट the land from India's Punjab and nearby areas and some land from Pakistan's Punjab and establish Khalistan. हालांकि खालिस्तान का कोई एक स्पेसिफिक मैप नहीं है, ये जस्ट एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो आप यहां पर देख रहे हैं खालिस्तान के रूप में. एक रिमार्केबल फीचर इस मूवमेंट का यह था कि इस खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे थे. उनको अपनी जमीन देनी पड़ रही थी खालिस्तान में, बट वो फिर भी खुश थे. क्यों? क्योंकि इंडिया डिस्टेबिलाइज हो रहा था, वन, और उनको एक बफर टेरिटरी मिल रही थी जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में, दैट वाज खालिस्तान. तो उनका पैसेज फ्रॉम खालिस्तान टू जम्मू एंड कश्मीर वुड बी इजी, ऐसा उनका मानना था और ये सोच के वो लोग सपोर्ट कर रहे थे. ये मूवमेंट चला, बट इस मूवमेंट के स्टार्ट होने की वजह क्या थी, वो बैकग्राउंड जानना जरूरी है. 1947 में when we became independent, two states, Punjab in the western side and Bengal in the eastern side, they were divided. The west of Punjab went to Pakistan, the eastern part of Punjab came to India, and the western part of Bengal came to India, eastern part of Bengal went to Pakistan. और जब 1947 में ये पार्टीशन हुआ तो सिख कम्युनिटी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड कम्युनिटीज थी. जान गई, प्रॉपर्टी गई, जमीन गई, घर वाले गए, फीमेल्स गई. थिंग्स वर पैथेटिक. Actually, things were pathetic for them. And when they came here in India from Pakistan, they were demanding a separate state for themselves, separate state for the Punjabi speaking people. पंजाब था इंडिया में, बट जो पंजाब था
वो उस समय का पंजाब था आज का पंजाब प्लस आज का हरियाणा प्लस आज का हिमाचल प्रदेश। ये इतना बड़ा पंजाब था उस समय, और डिमांड थी कि सिर्फ ये पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए रहे पंजाब। अकाली दल ने 1947 में ही पंजाबी सूबा मूवमेंट चालू कर दिया। सूबा मतलब प्रोविंस। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था पंजाब प्रोविंस एस्टैब्लिश करना फॉर द पंजाबी स्पीकिंग पीपल ओनली। जो हिली एरियाज है वो अलग हो जाए, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वो अलग हो जाए। हिली एरियाज हिमाचल प्रदेश, हिंदी स्पीकिंग हरियाणा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनी 1950s में। 1955 तक इनका वर्डिक्ट आया, और वर्डिक्ट में इन्होंने इनकी डिमांड एक्नॉलेज नहीं करी। पंजाबी सूबा मूवमेंट की सक्सेस नहीं हुई। आंध्र प्रदेश बना पहला स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज, एंड पंजाबी सूबा मूवमेंट कंटिन्यूड because the demand was unfulfilled. But finally, in the year 1966, there was this formation of Punjab which happened. Now Punjab was this Punjab, Haryana became separate, Himachal Pradesh became a separate state. But Punjab and Haryana had a common capital, that was Chandigarh, which was neither in Punjab nor in Haryana. It was made a union territory. And this was one of the bone of contentions. There was other bone of contentions as well, like water sharing from the Indira Gandhi Canal system between Punjab and Haryana. अकाली दल का पंजाबी सूबा मूवमेंट सक्सेसफुल तो हो गया था, बट एक तरीके से पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ चंडीगढ़ का इशू था, वाटर शेयरिंग के इश्यूज दे वर पेंडिंग। और फिर उसके बाद जब पंजाब स्टेट फॉर्म हुआ, तो पंजाब में इलेक्शंस हुए 1970s में। जब पंजाब में इलेक्शंस हुए, तो अकाली दल को उम्मीद थी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारे वोट्स आएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का जो पंजाबी सूबा मूवमेंट वो चला रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया था। बट जब इलेक्टोरल रिजल्ट्स आए, तो उनके पास नंबर ऑफ सीट्स सिंगल डिजिट्स में आए। उनको लगने लगा कि अब हमें कुछ और करना चाहिए, कुछ हमें बड़ा करना चाहिए, स्टेट से भी बड़ा करना चाहिए। अब स्टेट से बड़ा या तो कंट्री होती है कि आप अलग कंट्री स्टैब्लिश करने की मांग करो, बट अकाली दल लीडर्स ने अलग कंट्री स्टैब्लिश करने की मांग नहीं रखी। उन्होंने आनंदपुर साहिब में मीटिंग करी और बोला कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए स्टेट रहते हुए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास है आर्टिकल 370 टाइप्स, वो चाहिए हमें। हम रहेंगे इंडिया के अंदर एज अ स्टेट, एज अ प्रोविंस, बट विद ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो अकाली दल लीडर्स ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया इन 1973, और उनकी डिमांड थी कि ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट होनी चाहिए ज्यादा, जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से एक इंसान बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया। वो इंसान एक रिलीजियस प्रीचर था, रिलीजियस स्कॉलर था। उस इंसान का नाम जरनैल सिंह ब्राड़। एंड he met the leaders of Akali Dal and said, why a state with greater autonomy? Why not a separate country for the Punjabi speaking people? And why not a separate country for those people who are following the purest form of Sikhism, the Khalsa Sikhism? खालसास के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड की जाए, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए दो चीजें जरूरी थी। एक तो था पब्लिक सपोर्ट, और दूसरा था पब्लिक में डर। पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए अकाली दल लीडर्स ने और जरनैल सिंह ब्राड़ ने धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च किया। दिस वाज लॉन्च्ड इन 1982। मैं जरनैल सिंह ब्राड़ यूज कर रहा हूं वर्ड, एक्चुअली हिज नेम वाज जरनैल सिंह ब्राड़। वी नो हिम बाय दिस नेम जरनैल सिंह भिंडरांवाले। एक्चुअली जिस
वो रिलीजियस स्कॉलर थे, वो जिस गुरुद्वारा के हेड थे, वो गुरुद्वारा बेसिकली भिंडरा विलेज में है, और उस गुरुद्वारे के जो भी रिलीजियस हेड्स वगैरह होते हैं उनको भिंडरा वाले बोलते हैं। तो दैट वाज अ टैग गिवन और अ टाइटल गिवन टू हिम। टैग कह सकते हैं हम उनको, बिकॉज टाइटल्स तो अबॉलिश्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो जर्नैल सिंह भिंडरा वाले वी नो हिम दिस वे, बट हिज एक्चुअल नेम वाज जर्नैल सिंह बराड़। तो इन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा चालू किया। धर्म युद्ध मोर्चा में बेसिकली ये लोगों को मोटिवेट कर रहे थे टू अडॉप्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिखिज्म। और धीरे ही धीरे धर्म युद्ध मोर्चा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया अमंग द मासेस। जो मेल्स थे वो अट्रैक्ट होने लगे टुवर्ड्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिखिज्म। दे गेव अप अल्कोहलिज्म, दे गेव अप ड्रग कंजम्पशन, दे स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, अर्निंग मनी फॉर देयर फैमिलीज। एंड इसमें सबसे ज्यादा जो खुश थी वो थी फीमेल्स। अब अगर आपका हस्बैंड या आपका ब्रदर या आपके फादर अल्कोहलिक है, एंड नाउ ही इज नॉट एन अल्कोहलिक, यू नो, हैज स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, तो ऑब्वियसली यू विल बिकम अ फैन। एंड यही होने लगा, पब्लिक सपोर्ट मिलने लग गया। धीरे ही धीरे ये पब्लिक सपोर्ट का मोमेंटम लेके आगे बढ़ रहे थे, और साथ ही साथ उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिखिज्म को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। हिंदूज, मॉडर्नाइज सिख्स, आउटसाइडर्स हु हैड कम देयर एंड सेटल्ड, government officials, and the terrorism which they were spreading, that was horrific, that was deadly, that was unmatchable. In broad daylight murders used to happen. शाम को 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था पंजाब में, ऐसा माहौल था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा विद द इंडियन आर्मी ओवर देयर। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1 से लेके जून 10 तक चला। जर्नैल सिंह भिंडरांवाले बेसिकली अमृतसर के गोल्डन टेंपल में थे। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है उनकी, उसको अकाल तख्त बोलते हैं, दैट इज द हाईएस्ट सीट इन द कंट्री। उन्होंने अपने आप को अकाल तख्त का हेड प्रोक्लेम कर लिया था, सेल्फ प्रोक्लेम, तो इसलिए वो वहां पर थे। और वो इस तरीके से प्रीच करते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हमारे रिलीजन को अटैक कर रही है, जब वो उनको पता लग गया था कि आर्मी उनको अटैक करने के लिए आ रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। ऑपरेशन ब्लू स्टार बेसिकली अंदर मिलिट्री घुसी। यहां पर आप देख सकते हो, अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, टैंक्स गोल्डन टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर है। ये गोल्डन टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर न्यूट्रलाइज हो रखे हैं टेररिस्ट, ब्लड स्टेन्स एंड ऑल, द इंडियन आर्मी जवान्स आर स्टैंडिंग। ये हालत थी, और जनरल सिंह भिंडरावाले को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट था इन टेररिज्म ऑफ पंजाब। ऑपरेशन ब्लू स्टार से हम ये तो कह सकते हैं डेफिनेटली कि पंजाब में टेररिज्म खत्म हुआ। पंजाब वॉज established as a peaceful state, a prosperous state. बट हम ये नहीं कह सकते कि खालिस्तानी मूवमेंट खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पंजाब में टेररिज्म खत्म हुआ, बट खालिस्तानी मूवमेंट खत्म नहीं हुआ। वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आफ्टर मैथ अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया 1984 में ही, जिस साल ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उनके खुद के सिख बॉडीगार्ड्स ने। ऐसा माना जाता है कि सिख बॉडीगार्ड्स को यह प्रेशराइज किया जा रहा था कि हम आपकी फैमिली को मार देंगे अगर आप इंदिरा गांधी को नहीं मारेंगे तो उन सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को मारने के बाद एक दूसरे को भी मार दिया था। ब्लोइंग अप ऑफ एन एयर इंडिया फ्लाइट कमिंग फ्रॉम कनाडा इन 1985। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कनाडा से इंडिया आ रही थी, उसको मिड एयर उड़ाया, मोर देन 300 पीपल डाइड। Khalistanis openly took the responsibility. This was happening 1 year down the line, or 1 year after Operation Blue Star. Assassination of ex-army chief General A.S. Vaidya, who led Operation Blue Star. Punjab referendum demand in 2020 by Sikhs for Justice, an organization which was headed by हरदीप सिंह निज्जर इन कनाडा। कनाडा ब्रांच जो है वो हरदीप सिंह निज्जर हेड करते थे सिक्स फॉर जस्टिस की। एक्चुअली हरदीप सिंह निज्जर
बेसिकली उनको उनकी एफिलिएशन खुद एक खालिस्तानी टाइगर फोर्स से थी। वो बहुत सारी ऐसी खालिस्तानी ग्रुपिंग्स थी, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स, खालिस्तानी कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, डमडमी टकसाल, खालिस्तानी टाइगर फोर्स। तो निज्जर बेसिकली इसमें थे, खालिस्तानी टाइगर फोर्स में। क्या वो एक्टिव थे इंसर्जेंसी के दौरान पंजाब में? इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि वो 1977 में पैदा ही हुए थे। बट हां, उनके नोन नियर एंड डियर वंस थे इन्वॉल्व। जैसे जैसे वो बड़े हुए, वैसे वैसे उनकी कंडीशनिंग वैसे हुई। टेररिज्म खत्म हो चुका था बहुत ज्यादा, अब वो आवाज नहीं उठा सकते थे वहां पे रह के, बट उनको ये पता था कि कनाडा में रह के ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है। तो इसलिए 1997 में जब वो 20 साल के थे, इंडिया से कनाडा चले गए। और मजे की बात यह है कि जब वो कनाडा पहुंचे, वो एक फेक नेम से पहुंचे, रवि शर्मा। ठीक है, जैसे तैसे वो वहां पे सेटल हुए। 2007 में उनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। वो वहां के सिटीजन हो गए। तभी जब उनका मर्डर हुआ अभी, तो जस्टिन ट्रूडो का ये कहना था कि कैनेडियन सिटीजन की किलिंग हुई है ऑन कैनेडियन सॉइल, दैट इज व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट इट इन द पार्लियामेंट। अब इसके पीछे जो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात रखी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिया ने बोला, इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स भी उन्होंने एक साल बाद अभी इस अक्टूबर में दिए। उसमें भी एज सच इंडियन एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट उसमें ये प्रूव हुआ है कि इंडियन एजेंट्स एक्टिवली इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे हरदीप सिंह निज्जर पे। करेंगे क्योंकि वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हमारी कंट्री में। बट इसके पीछे कुछ एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है जो हमें समझना है। मैंने कहा था ना कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि कनाडा एक डेमोक्रेसी है, और एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर 2025 में इलेक्शंस आने वाले हैं। प्रेजेंटली एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट में है, और कोलिशन गवर्नमेंट में वन ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स इज अ पार्टी ऑफ अ सिख, जगमीत सिंह, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट से वो भी जुड़े हुए हैं। तो जस्टिन ट्रूडो अगर हरदीप सिंह निज्जर की डेथ पे शांत रहते तो सिख वोट्स नहीं मिलते, या सिख वोट्स कट जाते, या उस पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता। इलेक्शंस अगले साल है, तो वोट बैंक का चक्कर है। हो सकता है जिसकी तरफ, मतलब कॉमन सेंस तो उसी की तरफ जा रहा है। हम एक्चुअली टेस्टिफाई नहीं कर सकते इसको, ना प्रूव कर सकते, बट यस, कॉमन सेंस इफ यू अप्लाई, इट इज दैट ओनली। तो अपकमिंग कैनेडियन इलेक्शंस इन 2025 इज वन सच रीजन। जगमीत सिंह जिनकी पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, तो देखते हैं वहां पर क्या सिचुएशन है अभी करंट। लिबरल पार्टी 154 सीट्स, लिबरल पार्टी के ही हेड है जस्टिन ट्रूडो। कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीट्स, मेजर ऑपोजिशन पार्टी है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 24 सीट्स, ये जगमीत सिंह की पार्टी है, और जगमीत सिंह भी खालिस्तानी सिंपैथाइजर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सपोर्ट में है। अगर जस्टिन ट्रूडो शांत रहते हैं निज्जर की डेथ पे, तो एक तो ये डेमोक्रेटिक सपोर्ट जा सकता है, दूसरा आने वाले इलेक्शंस में सिख वोट्स कट सकते हैं। तो ये एक एंगल है जो हमें पता होना चाहिए। बट एक, ठीक है, जो भी अभी हुआ अक्टूबर में, उसके बाद इंडिया ने फिर रिटेलिएट किया कि भाई ये तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ ना, आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि इंडियन एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आप एक्सप्लिसिटली प्रूव कर पा रहे हो। एक्चुअली नहीं है। तो ये तो आप सरासर ऐसी आप इल्जाम लगा रहे हो, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे इन एक्टिवली गैदरिंग इंटेलिजेंस अबाउट निज्जर। एंड ये पॉलिटिकल माहौल इस तरीके से बना कि वहां पर हिंदू टेंपल्स अटैक होने लग गए कनाडा में। जैसे कि आप देख रहे हो,
Canada temple attack, pro-Khalistani mob attacks devotees at Hindu temple. Now this is getting diffused in the society. This is causing destabilization. And obviously, India retaliated. Jaishankar loses cool at Canada. बोलना तो है ही. अब वो दिन चले गए जब एक डेवलप्ड कंट्री जो कि प्रो वेस्ट है, जहां का हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड का किंग है, वो कुछ भी करे और हम शांत रहे. वो दिन चले गए हैं एक्चुअली. वी आर एट पार. और वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज को जितना जल्दी और अच्छे से समझ ले, उतना ज्यादा बेहतर होगा फॉर द वर्ल्ड. एक्चुअली जो समय था, जो वो कहते थे, दुनिया सुनती थी, सुनेंगे बट आप सही चीज बोलो. और कोई भी चीज वो बोल सकता है. इंडिया खुद इस फेवर में है. डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट ये खत्म होना बहुत जरूरी है. हो सकता है अभी जस्टिन ट्रूडो उसी हैंगओवर में है, बट वो जितना जल्दी समझे उतना ज्यादा अच्छा होगा. अब जस्टिन ट्रूडो के कुछ जो एजेंट्स हैं या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वहां पे भी, जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी है, उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का भी नाम ले दिया. इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन होम मिनिस्टर, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. और अभी 24 नवंबर को जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को क्रिमिनल रिमार्क दिया. ट्रूडो कॉल्स ऑफिशियल्स क्रिमिनल्स ओवर फेक इंटेल ऑफ मोदी लिंक इन निज्जर प्लॉट. चलो, ये इतना तो बेसिकली है कि भाई इस लेवल की इन्वॉल्वमेंट ऐसे हाईलाइट ना हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसाला, ये टेंशंस को और ज्यादा बढ़ावा देने वाली ऐसी चीजें होती है. एंड जस्टिन ट्रूडो का यहां पर जो स्टेप है अपने ही ऑफिशियल्स को कहना, वो एक सभ्य हम कह सकते हैं या फिर एक मैच्योर लीडर की निशानी. बट इमेच्योरिटी वो पहले काफी डिस्प्ले कर चुके हैं. अब इंडिया कनाडा फैक्ट शीट थोड़ी सी जान लेते हैं. कितने इंडियंस हैं कनाडा में, कितना ट्रेड है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं कनाडा से इंडिया, कितने यहां से वहां जा रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, ये सब चीजें. तो अगर हम कनाडा से इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आता है, आने की बात करते हैं, तो बहुत कम आता है. 0.56% ऑफ द टोटल एफडीआई कमिंग इनटू इंडिया कम्स फ्रॉम कनाडा. तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है. अगर इंपैक्ट होगा भी तो एज सच इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, अगर हम ये मान के चलते हैं कि कनाडा से अब इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, जितना भी हमारा डायस्पोरा है इंडिया का, लगभग लगभग 32 मिलियन डायस्पोरा है. मतलब कि 3 करोड़ 20 लाख इंडियंस बाहर रहते हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज में. अब उसमें से 5.26% इंडियंस कनाडा में रहते हैं. ये हमारा जो 5 डायस्पोरा 32 मिलियन का है, 5.26% ऑफ 32 मिलियन इज इन कनाडा. यानी कि लगभग लगभग 17 to 18 लाख इंडियंस वहां रहते हैं. 17 लाख इंडियंस टू बी स्पेसिफिक, 16,89,000. और इन 16,89,000 में से लगभग लगभग 15 लाख ओसीआईज है. ओसीआईज मतलब उनको वहां की सिटीजनशिप मिल गई है. और बाकी बचे 2 लाख लगभग लगभग वो एनआरआईज है, मतलब उनके पास अभी भी इंडियन सिटीजनशिप है, वो वहां पर पढ़ने गए हैं या फिर काम कर रहे हैं, अभी तक वहां की सिटीजनशिप नहीं मिली, ऐसा. तो हमारा ये जो डायस्पोरा है, इसी में ही खालिस्तानीज है. और ये जो 16-17 लाख का डायस्पोरा है, लगभग लगभग इसमें मैं बोलूं तो 80,000 कुछ ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स. हालांकि ये एस्टिमेट्स है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है 80,000 वाली जो मैंने आपको बताई है. फिर एवरी 7th इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड इज इन कनाडा, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, तो एवरी 7th स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इज गोइंग टू कनाडा. कनाडा इज द 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया. 2021 का डेटा है कि कनाडा 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट है. यहां पर इंपैक्ट ठीक ठाक पड़ सकता है. ठीक है. अब ये ओसीआई जो है कनाडा में, जो वहां के सिटीजन बन चुके हैं, अगर ये इंडिया आ रहे हैं, अपने पिंड आ रहे हैं, अपने गांव आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, वो भी टूरिस्ट माने जाएंगे, कैनेडियन टूरिस्ट माने जाएंगे, क्योंकि अब वो कैनेडियन सिटीजन है. ठीक है. और बायलेटरल ट्रेड जो है इंडिया और चाइना के बीच में, वो लगभग लगभग $8 बिलियन का है. आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट बैलेंस्ड, स्लाइटली
India's exports to Canada are more as compared to India's imports from Canada. तो ये बेसिकली कुछ फैक्ट शीट है जो हमें पता होनी चाहिए. जियोपॉलिटिक्स इसमें क्या है इन्वॉल्व, थोड़ा सा इसकी तरफ भी नजर मारें. कनाडा G7 का पार्ट है. G7 मतलब वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. इंडिया G7 का पार्ट नहीं है. इंडिया G20 का पार्ट है, कनाडा G20 का पार्ट है. जितनी भी G7 वाले हैं वो G20 के पार्ट हैं. अब कनाडा बेसिकली फाइव आईज ग्रुपिंग का पार्ट है. यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी है इसमें. ये एक इंटेलिजेंस आई वुड से ग्रुपिंग है जो इंटेलिजेंस, सीमलेस इंटेलिजेंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. दूसरी तरफ इंडिया जो है वो क्वाड का पार्ट है. क्वाड में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज है. फिर दिस कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन फॉर दीज कंट्रीज, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्योंकि ये कनाडा के साथ भी है इनके संबंध और हमारे साथ भी है. यूएसए की तो नेबरिंग कंट्री है कनाडा, एंड इंडिया से आज की डेट में कोई खराब करना नहीं चाहता है. ये इंडिया को और पूरी दुनिया को अच्छे से पता है. तो यहां पर हमारे को कुछ मीडिएटर्स मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूएसए, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड कंट्रीज और इन द फॉर्म ऑफ G7 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल. देखो इशू तो है और इशू को रिजॉल्व करना जरूरी है. ये जो स्माइल्स हमें दिख रही है ना, ये एक्चुअली हमें ट्रू स्माइल्स वापस लानी होंगी. एक्चुअल वे फॉरवर्ड यही है. जस्टिन ट्रूडो को यह समझना होगा कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा. अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर अगर कोई खतरा है तो इंडिया बोलेगा, बढ़ चढ़ के बोलेगा. इंडिया आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी सबको रिस्पेक्ट करता है. तो इंडिया चाहता है कि आप भी उसकी करो. ऐसे ही निकलेगा सोल्यूशन. हो सकता है 2025 में इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद कुछ बदलाव हमें देखने को मिले. एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये जो चेंज हो ये एक पॉजिटिव चेंज हो, क्योंकि इंडिया ट्रूली इज एंड wants to be a Vishwamitra. We cannot and we should not compromise on that. So, this is it from my end. I will be seeing you with more topics, international, national issues, सारी चीजें कवर करेंगे. नमस्ते, जय हिंद.